Hello, friends. Here I came with the most important topic of the macroeconomics. You know the trade cycle. Yeah, right? So, trade cycle is nothing but the combination of multiplier effect and acceleration theory. But here I came to deliver you the fundamentals of acceleration theory. So, let's start. First of all, introduction. The accelerator effect examines the effect on the levels of investment from a change in economic output. Okay, let me underline the important words. It says that the accelerator effects examines the effect on the levels of investment from a change in economic output. Investments depends upon the change in economic output. In other words, the simple accelerator model suggests that capital investment is a function of output. Okay, if there is an increase in output, investment will rise to meet the expected demand. अगर आउटपुट में इंक्रीज होता है तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करेगा. किस लिए इंक्रीज करेगा? क्यों? डिमांड को फुलफिल करने के लिए, डिमांड को मैच करने के लिए. तो सारा बात ये है कि इन्वेस्टमेंट डिपेंड अपॉन द इकोनॉमिक आउटपुट. यू कैन ऑल्सो से दैट इकोनॉमिक आउटपुट, यू कैन ऑल्सो से एज डिमांड, you can also say economic output as the demand for a product. Okay, investments depends upon the change in economic output. Okay, another one was investments is a function of output. Okay, so according to all this, you can say that when income or consumption increases, okay, अगर इनकम या फिर कंजम्पशन इंक्रीज होता है. कंजम्पशन कब इंक्रीज होगा? जब आपका इनकम बढ़ेगा. ओके, व्हेन इनकम और कंजम्पशन इंक्रीजेज, इन्वेस्टमेंट will increase by a multiple amount. क्या कहता है? अगर इनकम और कंजम्पशन इंक्रीज करेगा, इन्वेस्टमेंट भी मल्टीपल अमाउंट से इंक्रीज करेगा. हैव यू गॉट इट? सो अगर कंजम्पशन या आउटपुट इंक्रीज करता है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी राइज करेगा मल्टीपल अमाउंट से. इट इज लाइक अ सर्कल. ओके, दिस थ्योरी suggests that there is a link. What says? This says that there is a link between the investment spending and consumer spending. This is the base of this theory. Okay, you must remember this. What? This theory suggests that there is a link between the investment spending and the consumer spending. Okay, investment, why the investment spending is necessary? Investment spending, what happens when the investment spending is happen? It increase the productive capacity. Okay, now answer me a question. Why would firms increase productive capacity? फर्म्स या फिर कोई कंपनी अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्यों इंक्रीज करेगा? इट आंसर्स दैट ऑब्वियसली बिकॉज दे थिंक डिमांड विल राइज इन फ्यूचर. क्योंकि वो सोचते हैं कि फ्यूचर में उनका प्रोडक्ट का डिमांड राइज करेगा, बढ़ेगा. ओके, इसलिए इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग होता है. इसलिए जिससे इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग होने से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ता है. अब ये डिमांड आता कहाँ से? डिमांड एक्चुअली एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स. ओके, तो 60% and more
यहीं से आता है। सी मतलब कंज्यूमर्स स्पेंडिंग और कंजम्पशन और हाउसहोल्ड कंजम्पशन, तो 60% से ज़्यादा यहीं से डिमांड आते हैं। तो एट द नोट, एक्सेलरेशन थ्योरी suggests that I means investment is linked. Now this is very important. You must remember this line. Acceleration theory suggests that I is linked not to the level of C, but C means consumer spending, but the rate. Have you got it? Rate of change in C. ये जो आई है इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग है वो सी के लेवल पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि रेट ऑफ चेंज इन सी पे डिपेंड करेगा। सी कंज्यूमर स्पेंडिंग का चेंज किस रेट से हो रहा है इस पे डिपेंड करेगा। ओके, let me explain with you with an example. Okay, there is consumer spending of 5 years. Okay, first year 100 million, second year 110 million, third 150 million, fourth 200 million, and last 180 million. So consumer spending of 5 years, first C1 100 million, second 110, third 150, fourth 200, and lastly 180 million. So look, there is an increase in consumer spending. How much? 10%. Okay, and second to third one it increased to 3.6%. I have calculated earlier, so I mentioned it 3.6%. Now it increased with 3.3%. Lastly, you can see it decreased with 10%. This is just the consumer spending. Now what happens with the investment spending? Look, 20 million. Let's take what? Anything. Let's take anything. 20 million investment spending. Now there is an increase, but by which? By diminishing rate. Increasing with diminishing rate. Okay, 20 million, now 60 million, now 50 million. Now when it falls it tends to 0 million. तो ये क्या पता चलता है हमको? अगर सी मतलब कंज्यूमर स्पेंडिंग राइज कर रहा है तो आई जो है वो गिर सकता है। इफ सी इज राइजिंग आई माइट बी फॉलिंग, बट इफ सी फॉल्स मतलब यदि सी गिरता है, सी यहाँ से आप देख रहे हो कि 200 से 180 हुआ, सी गिर रहा है तो मतलब आई ज़ीरो हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट आपका ज़ीरो होगा। कोई फर्म क्यों चाहेगा इन्वेस्ट करना जब उसका कंज्यूमर स्पेंडिंग घट रहा है? अगर आपका बढ़ रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहा है तो आपका इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग भी बढ़ेगा, लेकिन वो भी डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही कंज्यूमर स्पेंडिंग गिरने लगेगा, फॉल करने लगेगा, वैसे ही इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो जाएगा। ओके, इट सेज दैट rate of change in C really determine investment spending. The rate of change in C determine the investment स्पेंडिंग। सी के रेट में जो चेंज हो रहा है उसमें वो उस पर डिटरमाइन होगा कि इन्वेस्टमेंट कितना होगा और क्या होगा। अब 2-3 क्वेश्चन, जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई वुड फर्म्स इंक्रीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी, तो उसका आंसर था क्योंकि वो
सोचते हैं कि फ्यूचर में उनका डिमांड राइज करेगा। अब ये बताओ कि फर्म्स क्यों डिसाइड करेगा इन्वेस्ट करने का? व्हाट मेक फर्म्स डिसाइड टू इन्वेस्ट? थिंक. Okay, let me answer. Investment is, the answer is, investment is nothing but the change in people's income. Have you got it? No. वेज अगर बढ़ता है तो आपको क्या बढ़ेगा? मनी बढ़ेगा आपके पास। मनी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? कंजम्पशन बढ़ेगा आपके। और कंजम्पशन जब बढ़ेगा तो फर्म्स को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। किसके लिए? उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए। सो द इन्वेस्टमेंट इज द रिस्पॉन्स टू द एक्स्ट्रा कंज्यूमिंग पावर ऑफ द पब्लिक और पीपल। इन्वेस्टमेंट वो रिस्पॉन्स है किस चीज़ का? उस पब्लिक के पास जो एक्स्ट्रा कंज्यूमिंग पावर आया तो उसके लिए वो रिस्पॉन्स है। फर्म्स इसलिए वो इन्वेस्ट करेंगे। अगर पब्लिक ज़्यादा सामान खरीदना चाहती है तो फर्म्स को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्यों इन्वेस्ट करना पड़ेगा? क्योंकि वो उसको उस डिमांड को फुलफिल करना है, तभी वो फर्म्स प्रॉफिट कमा पाएगा। अब ये बात आती है कि पब्लिक कब खरीदना ज़्यादा चाहेगी? व्हेन द पब्लिक वांट्स टू बाय मोर? आंसर इज when their income will rise. Okay, so now one thing, the acceleration theory, sorry, the acceleration effect is a relationship between planned capital investment and the rate of change of NI, national income, or GDP. You can consider this also as a definition of acceleration theory. The acceleration effect states that it is a relation between the planned capital investment and the rate of change of NI और GDP. जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नेशनल इनकम या फिर GDP में मतलब लोगों के इनकम जो होते हैं उनमें राइज जैसे होगा वैसे ही इन्वेस्टमेंट भी राइज करेगा, मल्टीपल अमाउंट से राइज करेगा। अब मान लो कि एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए आसानी से। कोई एक इंडस्ट्री ले लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या होगा? फर्म जो होगा, कोई भी एक इंडस्ट्री में डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो फर्म्स को क्या करना पड़ेगा? फर्म्स क्या करेगा? शुरू में अपने जो उनके सारे प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसमें उसको लगा देगा। किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। जितने उसके स्टॉक्स है उसको वो जल्दी से जल्दी मार्केट में भेज देगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये तो शॉर्ट टर्म का बात होगी, यदि उसका डिमांड सस्टेन रहता है, मतलब उसका डिमांड आता ही रहता है, मतलब डिमांड हो ही रहा है उसके प्रोडक्ट का, तो क्या करेगा? फर्म्स को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। समझ में आया? फर्म्स को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। किस पे? अपने प्लांट्स पे करेगा, अपने फर्म अपने प्लांट पे करेगा, मशीनरी पे करेगा, टेक्नोलॉजी पे करेगा, फैक्ट्रीज पे करेगा और एंड सो ऑन। किस लिए करेगा? क्योंकि उसको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है। प्रोडक्शन क्यों बढ़ाना है? क्योंकि उसकी डिमांड को फुलफिल करना है। फुलफिल क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों के पास इनकम बढ़ रहा है। इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ा मतलब डिमांड बढ़ा, इसलिए तो फर्म्स को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही होता है एक्सेलेरेशन इफेक्ट, मतलब वेयर ए गिवन चेंज इन द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज विल काउज अ बिगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स। अब उस फर्म को अपने प्लांट के, अपने मशीनरीज के, अपने फैक्ट्रीज में उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। किस लिए? क्योंकि मार्केट में डिमांड बढ़ा है। सो डिमांड, व्हेन डिमांड राइजेस
It means increase in capital investment. ओके जैसे जैसे 4G आया, 4G आता है, क्लाउड कंप्यूटिंग अभी बहुत पॉपुलर है, ये सब जैसे 4G, इनका डिमांड बढ़ता ही जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो क्या होगा, उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो अब नए नए टेक्नोलॉजीज़, नए नए उनको अपने सॉफ्टवेयर वगैरह को अपडेटेड करना पड़ेगा। इसके लिए उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उनका डिमांड बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, वो सस्टेनेबल डिमांड है। ओके तो एक्सेलरेशन थ्योरी ओनली से एक्सेलरेशन थ्योरी, देयर आर लॉट ऑफ डेफिनेशंस। एक्सेलरेशन थ्योरी states that when income or consumption increases, investment will increase by a multiple amount. You can consider this as a definition of this theory, the acceleration theory, the theory of acceleration. Okay, this this theory states that I is linked with the C. I means investment spending is linked with C. Okay, मैंने तो अपनी तरफ से आई ट्राइड हार्ड कि आपको पूरी बता सकूं, लेकिन आगे मैं इसका एग्जाम्पल विथ डेटा दूंगा। ओके सो टिल देन प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। दिस इज माई वेरी फर्स्ट वीडियो, सो thank you so much for watching. Have a good day.